Hello everyone, I'm Vishal, one of the directors of CLAT Prep. Today in this video of Facing CR, we are going to discuss the topic of para-based assumption. अगर आपको कोई भी छोटा सा आर्ग्यूमेंट गिवन हो तो उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर जो भी अंडरलाइंग assumptions है हम उनको कैसे निकालते हैं, that is what we are going to see in this video. So let's say you are given with an argument like, it was a Saturday evening, my brother stole and ate a pizza which I had bought from Domino's. After the pizza disappeared, he had cheese on his fingers and he said that he wasn't hungry when I asked him whether or not he wanted dinner. I was sad. ये आपको एक आर्ग्यूमेंट गिवन है जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, हमें ये निकालना है कि यहां पर स्पीकर मेनली हमें क्या कन्वे करना चाह रहा है, मतलब फाइंड आउट द कंक्लूजन, द ऑथर्स ओपिनियन यहां पर क्या है. क्या इस पूरे आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर को देख करके हमें यह समझ में आ रहा है कि ऑथर हमसे यह कहना चाहता है कि his brother has stolen and eaten the pizza which he had bought from Domino's? वो क्या है? It was a Saturday evening. Probably इसके स्पीकर के assertion से कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक रैंडम डिटेल है मेरे पास. My brother stole and ate a pizza. This is what the opinion has been formed by the author. So यहाँ पर जो कंक्लूजन है, जो यहाँ पर स्पीकर प्रूव करना चाह रहा है, वो क्या है? His brother stole and ate the pizza. कहाँ से? जो उसने Domino's से खरीदा था. After the pizza disappeared, now basically what he is giving the reasons. He is citing the reasons on the basis of which उसने अपना opinion create किया है. मतलब premise आ रहा है, stated facts आ रहा है. क्या है? He had cheese on his fingers and he said that he wasn't hungry when I asked him whether or not he wanted dinner. तो पहला he had cheese on his fingers, ये fact यूज कर रहा है. दूसरा he wasn't hungry when he was asked for dinner. तो इन दो facts के basis पर स्पीकर ने अपना ये opinion create कर लिया कि his brother has stolen the pizza and eaten the pizza. फिर I was sad is again nothing to do with the speaker's assertion कि his brother has stolen and eaten the pizza, right? So यहाँ पर I was sad, it was a Saturday evening, ये सब क्या है? ये सब कोई काम के नहीं है. I can filter out these informations. So अगर पूरे argument को मैं break करता हूँ, the main opinion of the author जो वो prove करना चाह रहा है, conclusion क्या था? The speaker's brother stole and ate the pizza. This is what the conclusion can be. किस basis पर, मतलब इसके supporting facts क्या है? Premise क्या है? Number one, his brother had cheese on his fingers. Number two, his brother wasn't hungry when he was asked for dinner. बाकी ये जो it was a Saturday evening, I was sad, ये सब आपके random details है. अब हम क्या definitely ये बोल सकते हैं because he had cheese on his fingers, his brother has stolen the pizza? या because he wasn't hungry, his brother has eaten the pizza? तो यहां पर हमें क्या यूज करना है? assumptions यूज करना है जो बेसिकली क्या करेगा, आपके स्टेटेड फैक्ट्स और ओपिनियन के बीच का जो गैप है वो कम करेगा, या फिर आप ये कह सकते हो एक लॉजिकल कनेक्टिविटी क्रिएट करेगा, लेकिन वो आपके आर्ग्यूमेंट में डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होगा. सो दोज आर अनस्टेटेड फैक्ट्स. तो अब आई एम गोइंग टू यूज assumptions which will create a support to the author's opinion still being unstated. So what are the assumptions here? देखो यहां पर हमने दो फैक्ट यूज किया था, हम दोनों फैक्ट के पीछे उस assumption का सपोर्ट लेकर के अपने ओपिनियन को सपोर्ट देंगे, राइट? क्या है? His brother had cheese on his fingers. और उसके बेसिस पर ऑथर ने ओपिनियन क्रिएट किया his brother has stolen the pizza. तो क्या हम ये एक assumption बना सकते हैं कि stealing a pizza puts cheese on one's fingers? अगर आप पिज्जा चुराते हो तब आपके फिंगर्स पे चीज लग सकती है, एंड दैट इज वाई द स्पीकर इज मेकिंग एन ओपिनियन दैट हिज ब्रदर हैज स्टोलन द पिज्जा. क्यों? क्योंकि उसके ब्रदर पे फिंगर्स पे भी क्या है? चीज है, राइट? सेकंड, एक और ओपिनियन क्रिएट किया था स्पीकर ने, दैट इज हिज ब्रदर हैज ईटन द पिज्जा. क्यों? क्योंकि ही सेड दैट व्हेन ही आस्क्ड हिज ब्रदर फॉर डिनर, द ब्रदर रिप्लाइड दैट ही वाजंट हंग्री. दैट मींस द पिज्जा मस्ट हैव सबसाइडेड हिज हंगर. मतलब the speaker is making an assumption that a pizza can subside one's hunger, right? A pizza can subside one's hunger. So ये दोनों यहां पर assumptions implicit है, definitely है, जो taken for granted है by the speaker, stated नहीं है. Assumptions क्या हुआ? इसका मतलब assumptions हुआ unstated facts which supports the author's opinion, or else I can say that it bridges the gap between the stated facts and the author's opinion. राइट? अब ये दोनों assumptions है. अगर मैं क्रॉस कंफर्म करना चाहता हूं क्या ये assumption करेक्ट है, तो एक काम करो, आप तो प्रेमिस को यूज कीजिए,
अजम्पशन इंसर्ट करो और फिर अपने कंक्लूजन को पढ़ो। क्या वो रैशनल नजर आ रहा है क्या? मतलब आपको लगता है कि हां अब ये और लॉजिकल साउंड कर रहा है। लेट्स सी। पहला प्रेमिस मैंने यूज किया था, आफ्टर द पिज्जा डिसअपीयर्ड माय ब्रदर हैड चीज ऑन हिज फिंगर्स। और अब मैं अपने अजम्पशन को इंसर्ट करता हूं। अजम्पशन क्या बनाया था मैंने? स्टीलिंग अ पिज्जा पुट्स चीज ऑन वंस फिंगर्स। तो क्या अब मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि ऑथर का जो ओपिनियन निकल के आया था कि हिज ब्रदर हैज स्टोलन द पिज्जा, ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है उसका असर्शन? Yes. So now I can say that my brother stole the pizza. So जैसे ही आप अपने assumption को अपने supporting facts और opinion के बीच में insert करते हो, आपका जो opinion है वो और ज्यादा strong हो जाता है। वो definitely speaker के assertion को हम और ज्यादा strong मान सकते हैं, right? So सेकेंड वाला यहां पर हमने कंक्लूजन क्या फॉर्म किया था? हिज ब्रदर हैज ईटन द पिज्जा। सो लेट्स सी उसके लिए प्रीमाइस क्या यूज किया था। जब स्पीकर ने अपने ब्रदर से यह पूछा कि वेदर ही वांटेड डिनर और नॉट, ही सेड दैट ही वाजंट हंग्री। सो ही वाजंट हंग्री, इसके बेसिस पे स्पीकर ने ओपिनियन क्रिएट कर लिया था कि हिज ब्रदर हैज ईटन द पिज्जा। इसका मतलब क्या स्पीकर ये अजम्पशन बना रहा था कि अब पिज्जा कैन सबसाइड वंस हंगर? जैसे ही इस अजम्पशन को मैं इसके बाद लेता हूं या इन अ वे मैं अपने प्रीमाइस और ओपिनियन के बीच में इंसर्ट करता हूं। ओपिनियन क्या था? माय ब्रदर एट द पिज्जा। अब ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, स्पीकर के असर्शन को और ज्यादा सपोर्ट मिल गया, राइट? सो यहां पर डेफिनेटली ये अजम्पशन भी वैलिड है। सो एक तरीका, जब सपोज करो यू डील विद अ पैरा बेस्ड क्वेश्चन वेयर इन यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द अंडरलाइंग अजम्पशन, यू आर गिवन विथ 4 ऑप्शंस, जिसमें से मैक्सिमम टाइम्स 2 ऑप्शन को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होते हो और आपको यह लगता है बोथ आर इक्वली करेक्ट, इक्वली लाइकली टू बी करेक्ट, दिस इज व्हाट यू फील, बट एक्चुअली आंसर तो एक ही होगा। सो वी नीड टू, हमेशा क्या चूज करते हैं अपन? वी नीड टू चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो आप क्या कीजिए, आप तो अपने अजम्पशन को ओपिनियन के ऊपर प्लेस कीजिए और उस अजम्पशन के ऊपर जो स्टेटेड फैक्ट्स के बेसिस पर आपने ओपिनियन क्रिएट किया था उसको यूज कर लीजिए। मतलब प्रेमिस, फिर अजम्पशन और फिर कंक्लूजन। अगर आपको लगता है कि एक लॉजिकल कनेक्टिविटी है जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा है तो आपका अजम्पशन करेक्ट है। स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज्ड, अगर आपको यह लगता है कि नहीं शायद अभी भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, then there is one more technique. Use the negation technique. Negation technique क्या कहता है? आपको अपने assumption को negate कर देना है, उल्टा कर देना है। The moment you negate the assumption, it should create a certain kind of uncertainty या it should create a doubt on the author's opinion. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैंने कहा था आफ्टर द पिज्जा डिसअपीयर्ड माय ब्रदर हैड चीज ऑन हिज फिंगर्स। अब मैंने जो अपना assumption क्रिएट किया था उस assumption को मैं negate कर देता हूं। The assumption is stealing a pizza does not put cheese on one's fingers. तो अगर stealing a pizza does not put cheese, तो मैं कैसे क्लेम कर सकता हूं कि my brother had eaten stolen the pizza? जो स्पीकर का क्लेम था, आपको नहीं लगता वो डाउटफुल हो गया? तो जैसे ही आपने अपने assumption को negate किया, your opinion becomes doubtful. My brother stole the pizza, अब ये डाउटफुल हो गया, क्योंकि अगर stealing the pizza does not put cheese on one's finger, how can the speaker claim that his brother has stolen the pizza on the basis of the fact that his brother had cheese on his fingers? No, that becomes doubtful now. Second वाला भी चेक कीजिए. He said that he wasn't hungry when I asked him whether or not he wanted dinner. So that means his hunger has been subsided. तो स्पीकर का यह assumption था कि पिज्जा कैन सबसाइड वंस हंगर, तभी तो वो कह रहा था कि डज नॉट वांट डिनर। तो अगर मैं अपने assumption को नेगेट कर देता हूं, मतलब अब पिज्जा कैन नॉट सबसाइड वंस हंगर, तो जब पिज्जा कैन नॉट सबसाइड वंस हंगर, दैट क्लियरली इंप्लाइज दैट द स्पीकर्स ब्रदर might have eaten something else to subside his hunger, and that is why he said that he wasn't hungry for dinner. Right? So therefore a pizza cannot subside one's hunger. The moment your assumption gets negated, again the speaker's assertion, that is my brother ate the pizza, becomes doubtful. So the moment you negate your assumption, it should definitely put an uncertainty, or you can say it should create a doubt on the opinion so made. सो कभी भी अगर आप 2 assumption के बीच में कंफ्यूज हो जाएं तो उस assumption को नेगेट कर दीजिएगा। नेगेट करने के बाद अगर आपको यह लगा कि अब कंक्लूजन थोड़ा डाउटफुल हो गया है तो डेफिनेटली वो assumption करेक्ट है।
So I believe with this video, that example we have taken in this video, assumptions हमें कैसे निकालना है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. And if you get confused between any two option, you can use the negation technique. This will be definitely helpful to go for the correct answer. So for more such videos, stay tuned. Thank you. Bye bye.